So good morning to all. Welcome to Primary की पाठशाला. I am here, your English educator. So hurry up, join fast, share the video link with your friends. So today we are going to discuss about the chapter Black Beauty from your class 4th, and this is from your Collins Literature. Okay. तो अगर आपके स्कूल में ये बुक फॉलो अप हो रही है तो आपको इजीली इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पे मिल जाएगी. तो यू कैन शेयर द वीडियो लिंक विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन कम एंड जॉइन द सेशन. हरी अप, जॉइन फास्ट एवरीवन. हेलो मान्या सिंह, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आई थिंक आपकी सिस्टर या ब्रदर है क्लास 4th में. ओ यू आर चैतन्य. ओके, मान्याज ब्रदर, राइट? ओके, समझ आ गया मुझे. तो यू आर मान्याज ब्रदर. ओके, सो वेलकम टू द क्लास. आपकी क्लास हो गई, स्कूल में क्लास हो गई चैतन्य? ओके, तो you can invite your friends also, Chaitanya. We will try to discuss all the chapters of your class. Okay, so you can invite your friends also for attending the class. And this is about me. I have done masters in humanities and I have more than 3 years of a teaching experience. Here we are providing free live classes which is totally free. We are not charging not even a single penny for this. You just have to come and join our classes. Share it as much as possible ताकि आपके साथ बाकी बच्चों का भी फायदा हो सके. And definitely you can get something fruitful from us. Okay. And if you have any doubt, any query, you are free to ask any questions. You just text a message. Okay. So we have two channels. We have this primary की पाठशाला. So those who are studying class 1st to 5th, they can easily get the study material in this channel. And those who are in class 6th to 10th, they can move forward towards CBSE exclusion. Okay, जहाँ पे हम class 6 to 10th का syllabus carry forward कर रहे हैं. तो you can definitely subscribe both the channel if you want a fruitful knowledge from us. Okay. Okay, so are you ready for today's class? I think you all are ready. So today we will discuss the chapter Black Beauty. I think आपकी मैम ने ये चैप्टर करा दिया होगा चैतन्य. चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका दिस ब्लैक ब्यूटी. एंड वी विल डू मेंटी ऑल्सो इफ वी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स. ओके, जिस दिन हमारी क्लास में स्टूडेंट्स थोड़े ज़्यादा होंगे देन वी विल डू ऑनलाइन मेंटी क्विज ऑल्सो. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर ऑनलाइन मेंटी क्विज देन सब्सक्राइब आवर चैनल. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और if you will click on the bell icon you can get the notification of all the classes. आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी. and when we have so many students on this channel then we definitely we will do menti. okay, तो आज देखते हैं हमारे पास कितने students हैं. if we have so many students, so tomorrow we will discuss the question answers and we will do menti also. okay, so if you want to do menti then share it as much as possible, then we will do definitely we will do menti. okay, हाँ बिल्कुल चैतन्य, menti भी होगा. tomorrow we will do menti and we will discuss question answers also. okay, and we will do this class at the same time. We will try to take class at the same time. You can click on the bell icon so that you can get the notification of all the classes. अगर आप bell icon पे click करोगे तो आपको क्लास की easily notification मिल पाएगी, क्योंकि अभी fix timing decide नहीं हुआ है क्लास का. तो whenever I will free I will take class on this channel. okay, so you can click on the bell icon so that you can get the notification. okay, so let's start this chapter without wasting time. okay, टाइम को वेस्ट किए बिना इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं. ओके, सो दिस स्टोरी ब्लैक ब्यूटी इज बेसिकली अबाउट द हॉर्स एंड दिस स्टोरी हॉर्स इटसेल्फ नरेटिंग हिज स्टोरी. ठीक है, यहाँ पर जो आपका नरेटर है वो खुद हॉर्स ही है जो अपनी स्टोरी को नरेट कर रहा है. ओके, सो हॉर्स हैव बीन डोमेस्टिकेटेड एंड ट्रेन्ड बाय ह्यूमंस सिंस एंशिएंट टाइम. यू ऑल नो कि एंशिएंट टाइम से ही, बहुत पुराने टाइम से ही ये चलता आ रहा है कि हॉर्स इज द बेस्ट पेट एनिमल, और उसको लोग पालते हैं. स्टार्टिंग से ही लोग पाल रहे हैं और हॉर्स का अपने बहुत सारे डोमेस्टिक वर्क्स के लिए यूज किया जाता है. वेदर इट इज अबाउट राइडिंग, अगर उन्हें राइड करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है. तो पहले के टाइम में तो ट्रांसपोर्ट्स नहीं होते थे, इतना हम डेवलप नहीं थे. वी डोंट हैव एनी ट्रांसपोर्ट्स लाइक व्हीकल्स लाइक दिस बस, ट्रेन, एरोप्लेन, ट्रक, बाइक, कार. वी डोंट हैव ऑल दीज थिंग्स इन एंशिएंट टाइम्स. ठीक है, तो हम एनिमल्स का ही यूज करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. ठीक है, तो जो हॉर्स थे स्टार्टिंग से ही हॉर्स ह्यूमंस के साथ रह रहे हैं एंड ह्यूमंस आर यूजिंग हॉर्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज अ ट्रांसपोर्ट. ओके, सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ हॉर्स जिसका नाम है ब्लैक ब्यूटी.
ठीक है, ये जो स्टोरी है ये हॉर्स के बारे में है एंड द नेम ऑफ दैट हॉर्स इज, और उस हॉर्स का नाम क्या है, ब्लैक ब्यूटी। अब ऑब्वियसली बात है, नाम ब्लैक ब्यूटी है तो आप इजीली समझ पा रहे हैं ब्लैक मतलब कि जो हॉर्स है वो ब्लैक है, बट दैट हॉर्स इज ब्यूटीफुल, दैट्स व्हाई द नेम इज ब्लैक ब्यूटी। In his own words, to understand why horse are loved and valued so much. अब ancient times में जो horse होते थे उनको लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनको बहुत वैल्यू करते थे। Do you know why? क्यों उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे, क्यों उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे? ठीक है, एक तो सबसे बड़ी चीज़ वो अपने मालिक को लेके बहुत ज़्यादा, जैसे कि आज के टाइम में हम बोलते हैं कि डॉग्स आर वेरी ऑनेस्ट टूवर्ड्स देयर बॉस, ओके। तो सिमिलरली जो हॉर्स होते थे दे आर ऑल्सो वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। आपने सुना होगा चेतक का नाम, आप सबने सुना होगा, यू ऑल आर अवेयर विद दिस नेम चेतक। चेतक किसका हॉर्स था, डू यू नो? चेतक किसका हॉर्स था? जल्दी से टेक्स्ट मैसेज करके मुझे बताइए चेतक किसका हॉर्स था। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, देन वी विल कंटिन्यू। चेतक किसका हॉर्स था, डू यू नो? लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू नो। चेतक किसका हॉर्स था? हरी अप, आंसर फास्ट। क्लास में अगर इंटरेक्शन नहीं होता है तो मजा नहीं आता है। व्हेन यू विल टेक इट एज ऑफलाइन क्लासेस ना, देन डेफिनेटली you all will enjoy this class, okay? तो tell me चेतक किसका नाम था? चेतक किसके हॉर्स का नाम था? नहीं पता किसी को? If you don't know, you can also text a message that ma'am we don't know, then I will tell you. यो वाओ, वेरी गुड चैतन्य। चेतक महाराणा प्रताप के हॉर्स का नाम था और उसने कितनी ईमानदारी के साथ अपनी सारी भूमिकाएं निभाई युद्ध में, ठीक है। यू ऑल नो इट एंड दैट्स व्हाई एंड थ्रू चेतक यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि व्हाई इन एंशिएंट टाइम्स हॉर्स आर मोर वैल्यूएबल एंड लव्ड बाय देयर, जो भी उनके मालिक होते थे, ठीक है। सो दिस स्टोरी इज अबाउट हॉर्स। ये जो स्टोरी है ब्लैक ब्यूटी, दिस इज अबाउट अ हॉर्स एंड द नेम ऑफ दैट हॉर्स इज ब्लैक ब्यूटी। और ये जो स्टोरी है वो खुद हॉर्स ही नरेट कर रहा है, ओके। सो हियर द नरेटर इज हॉर्स itself, that is black beauty, okay. So let's start this chapter. One night I had eaten my hay and was laid down in my straw fast asleep. One night I had, तो यहाँ पर I क्या है आपका? I है आपका horse। कौन है I? Horse है। Horse कौन सा? Black beauty, okay. So one night I had eaten my hay and was laid down in my straw fast asleep, okay. वो अपने जो हॉर्स था, जहाँ पे हॉर्स को रखा जाता था, वो वहां पर लेटा हुआ था, सोया हुआ था। When I was suddenly woke up, और जैसे ही वो एकदम से जागता है, by the stable, stable you all know, जहाँ पे हॉर्स रखे जाते हैं उस जगह को बोलते हैं bell ringing very loud. I heard the door of John's house open and his feet running up to the हॉल, ठीक है। जो जॉन है वो हॉर्स की तरफ आता है एंड ही सेड टू द हॉर्स ब्लैक ब्यूटी, वेक अप ब्यूटी, यू मस्ट गो वेल नाउ, ओके। और वो ब्लैक ब्यूटी को बोलता है कि ब्लैक ब्यूटी जल्दी से जाओ, हमें कहीं जाना है। इफ एवर यू डिड, एंड ऑलमोस्ट बिफोर आई कुड थिंक ही हैड गॉट द सैडल। Saddle, what is the meaning of the word saddle? It means a leather skirt for a rider on a horse. सैडल किसको बोलते हैं? सैडल आपने देखा होगा जब हॉर्स पर आप राइड करते हैं तो हॉर्स के ऊपर एक लेदर का बिछा दिया जाता है सो दैट यू कैन कंफर्टेबली सिट ऑन द हॉर्स, ओके। तो वो सैडल बिछाते हैं हॉर्स के ऊपर जॉन। ऑन माई बैक एंड ब्रिडल, what is the meaning of the word bridle? BRIDLE. What does it mean? It means a set of straps that is put around a horse head and used for controlling it. और आपने देखा होगा एक रस्सी पकड़ी हुई होती है जो भी हॉर्स को राइड करता है ताकि वो इजीली हॉर्स को कंट्रोल कर सके और राइट डायरेक्शन दे सके, ठीक है। तो वो जॉन जो है वो तैयार करता है हॉर्स को राइडिंग के लिए। And then after preparing the horse Black Beauty for riding, okay, then took me to quick trot, 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 that is the movement of a horse taking quick small steps up to the hall door, ठीक है। वो हॉल डोर के पास Black Beauty को लेकर जाता है। The squire, that is a man of high social status who owns most of a land in a country. अब वो Black Beauty किसका हॉर्स था? एक ऐसे इंसान का हॉर्स था जो कि बहुत ही अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करता था,
बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता था, उसका स्टेटस बहुत हाई था सोसाइटी में। ओके, और स्क्वायर वो होते हैं जिनका सोसाइटी में स्टेटस बहुत हाई होता है और जिनके पास बहुत सारी लैंड होती है। ओके, सो स्टूड देयर विद अ लैम्प इन हिज हैंड, तो स्क्वायर के पास जॉन ब्लैक ब्यूटी को लेकर जाता है। ओके, नाउ जॉन ही सेड राइट फॉर योर लाइफ। ओके, अब जो स्क्वायर है, जो मास्टर है, जो मालिक है, वो बोलता है राइट फॉर योर लाइफ। राइट फॉर योर लाइफ वो क्यों बोल रहा है? दैट इज फॉर योर मिस्ट्रेस लाइफ। राइट फॉर योर लाइफ क्योंकि जो मालिक है, उसकी जो मिस्ट्रेस है, उसकी जो जिंदगी है बहुत खतरे में है क्योंकि वो बहुत बीमार है और उसको डॉक्टर की जरूरत है। ओके, सो देयर इज नॉट अ मोमेंट टू लूज, और इसलिए वो समझाने की कोशिश कर रहा है जॉन को कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके, तुम जितनी जल्दी जा सकते हो डॉक्टर को बुलाने, उतनी जल्दी हॉर्स को राइड करके डॉक्टर के पास जाओ और उसे लेकर आओ, बिकॉज वी डोंट हैव इनफ टाइम। ओके, सो गिव दिस नोट टू डॉक्टर वाइट। अब वो बोलते हैं डॉक्टर वाइट को बुलाने के लिए, वो बोलते हैं कि डॉक्टर वाइट को बुलाओ और उनको बताओ कि उनकी यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है। गिव योर हॉर्स अ रेस्ट एट द inn एंड बी बैक एज सून एज यू कैन। ठीक है, और हॉर्स के साथ जाकर के जितनी जल्दी तुम डॉक्टर वाइट को बुला करके ला सकते हो, उतनी जल्दी डॉक्टर वाइट को बुला करके लाओ। ओके, yeah, very good Chaitanya. A seat usually made of leather that you put on a horse so that you can ride it. Very good. So आप भी अपनी सिस्टर की तरह बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट हो, right? So okay, so let's continue. You can share it with your friends also, Chaitanya, and you all can subscribe this channel also so that you can get the notification of all the classes, right? And don't forget to hit on the like button if you are really liking the video. ठीक है, सो जॉन सेड यस सर एंड वाज ऑन माय बैक इन अ मिनट। ओके, तो जॉन बोलता है डेफिनेटली मैं आपकी बात को ध्यान रखूंगा और जितनी जल्दी हो सके मैं वापस आने की कोशिश करूंगा। There was before us a long piece of level road by the river side. अब जो डिस्टेंस था वो बहुत ही ज्यादा था, ठीक है, बीच में रिवर साइड भी था। जॉन सेड टू मी, अब जॉन ने ब्लैक ब्यूटी से कहा, जॉन सेड टू मी यानी कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा ब्लैक ब्यूटी जो हॉर्स है वही पूरी स्टोरी को नरेट कर रहा है, तो जॉन ने ब्लैक ब्यूटी से कहा, हॉर्स से कहा, नाउ ब्यूटी डू योर बेस्ट। ओके, उन्होंने ब्लैक ब्यूटी से क्या कहा? नाउ ब्यूटी डू योर बेस्ट, आज तुम्हें अपना बेस्ट देना है। एंड सो आई डिड, और मैं भी अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, आपका कोई दोस्त नहीं है? ओके, आई वॉन्टेड नो विम्प नो स्पर। स्पर, व्हाट डज इट मीन? अ स्पिंकल व्हील दैट इज worn on a rider's heel and used for urging a horse forward. उसने हॉर्स को बोला कि तुम जितनी तेजी से भाग सकते हो उतनी तेजी से भागो। एंड फॉर 2 miles आई गैलोप्ड एज फास्ट। गैलोप्ड, जो हॉर्स था वो जितनी फास्ट रन कर सकता था वो उसने उतनी फास्ट रन किया। गैलोप्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड गैलोप? इट मीन्स रन एट द फास्टेस्ट स्पीड विद ऑल द फीट ऑफ द ग्राउंड टुगेदर इन ईच स्ट्राइड। तो जो हॉर्स था वो जितनी तेजी से भाग सकता था उसने उतनी तेजी से भागा। एज फास्ट एज आई कुड ले माई फीट द ग्राउंड। आई डोंट बिलीव दैट माई ओल्ड ग्रैंडफादर हु वॉन द रेस एट न्यूमार्क कुड हैव गॉन फास्टर। ओके, अब वो बताते हैं कि जो उसके जो ब्लैक ब्यूटी का जो ग्रैंडफादर था, ओल्ड ग्रैंडफादर, उसने एक रेस जीती थी, वो भी अपनी रेस में इतनी जो तेजी से नहीं भागा होगा जितना आज ये ब्लैक ब्यूटी भाग रहा था। The church clock struck the 3 as we drew up at the doctor. ठीक है, और फिर वो डॉक्टर के हाउस के पास पहुंच गए। What is the name of the doctor? डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर वाइट। ओके, what is the name of the doctor? डॉक्टर वाइट। तो डॉक्टर वाइट के घर पर वो लोग पहुंच गए। वाइट्स डोर, जॉन ने जो वाइट के घर का जो डोर था उसकी बेल रिंग करी। उसने 2 बार बेल को बजाया, बेल ट्वाइस, एंड देन नॉक, उसने डोर को नॉक किया एट द डोर लाइक थंडर, और बहुत जोर से नॉक किया बिकॉज वो बहुत जल्दी में था और उसे अपनी मिस्ट्रेस की जान को बचाना था। ओके, दैट्स व्हाई ही इज इन हरी। A window was thrown up and Dr. White in his nightcap put his head out and said, "What do you want?" Okay, और जैसे ही उसने डोर को नॉक अप किया, डॉक्टर वाइट विंडो खोली अपने घर की, और विंडो से उन्होंने नाइट ड्रेस पहन रखी थी, विंडो से उन्होंने अपना सर बाहर निकाला। He asked that boy John,
What do you want? तुम्हें क्या चाहिए? Okay? तो उसने जॉन से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? Why you are just knocking the door like this? तुम इस तरीके से डोर को क्यों नॉक अप कर रहे हो? Then Mrs. Gordon is very ill. तो जॉन बताता है what is the name of the mistress? मालकिन का नाम क्या था? Mrs. Gordon. Okay, Gordon. Then he said to the Dr. White that Mrs. Gordon is very ill. जो Mrs. Gordon है वो बहुत बीमार है. Sir, Master wants you, जो हमारे मालिक है वो ये चाहते हैं you go at once. तुम जल्दी से हमारे साथ चलो और मिसेस गॉर्डन को देखो, उनका इलाज करो. He thinks she will die if you cannot get there. Here is a note. वो उनके मैसेज को कन्वे करते हुए जॉन बोलते हैं कि अगर तुम टाइम पर नहीं पहुंचे तो उनकी जान खतरे में हो, शायद नहीं बच पाएंगी. सो प्लीज बी इन हरी और हमारे साथ मिसेस गॉर्डन को देखने के लिए चलो. Then Dr. White said, wait. He said, I will come. वो बोलता है ठीक है, wait for me, I am coming. थोड़ा wait करो, मैं आ रहा हूँ. Okay. Then he shut the window and was soon at the door. Okay. वो window shut कर देता है और door open करता है. The worst of it is, फिर वो बताता है कि कुछ problem है. What is the problem? He said that my horse has been out all day and is quite done up. ठीक है, बोलता है कि जो मेरा खुद का horse है वो घर पर नहीं है, वो बाहर है. क्यों बाहर है? Because my son just been sent for and he has taken the other what is to be done. अब वो हॉर्स मेरा बेटा ले गया है तो मैं कैसे जाऊंगा? Can I have your horse? फिर बोलता है जॉन can I take your horse? तो बोलता है क्या मैं तुम्हारा हॉर्स ले सकता हूँ? He has come at a gallop nearly all the way. ठीक है, जो हॉर्स था वो खुद ही इतना थका हुआ था और वो बहुत ही तेजी से भाग करके आया था ताकि वो डॉक्टर के पास जल्दी से पहुंच सके. And I was to give him a rest here. अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था जॉन के पास. He have to give his horse to the Dr. White. अगर मिस्ट्रेस की जान को बचाना था. But I think my master would not be against if it you think fit, sir. Okay? तो वो अपना हॉर्स या मिस्टर वाइट को, डॉक्टर वाइट को दे देता है. All right, he said, I will soon be ready. John stood by me and stroked my neck. I was very hot. ठीक है, जैसे ही जॉन ने उसकी नेक की तरफ देखा तो जो उसकी नेक थी ब्लैक ब्यूटी की, क्योंकि वो बहुत जोर से भागा था, that's why उसकी नेक बहुत हॉट थी, बहुत गर्म थी. ठीक है, मे बी इसको बुखार आया हुआ था. आई विल नॉट टेल अबाउट आवर वे बैक. द डॉक्टर वॉज अ हैवी. और जो डॉक्टर था वो जॉन के कंपैरिजन थोड़ा हैवी था, उसका वेट थोड़ा ज्यादा था एंड नॉट एज गुड. और वो राइड भी कोई इतनी अच्छी नहीं करता था. However, I did my very best. लेकिन फिर भी ब्लैक ब्यूटी ने अपने तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश की और जल्दी से जल्दी डॉक्टर वाइट को अपने मास्टर के घर पहुंचाया. Joe was at the lodge gate. My master was at the hall door. For he had heard us coming. He spoke not a word. The doctor went into the house with him and John led me to the stable. Okay? तो डॉक्टर था वो घर के अंदर चला गया मिस्ट्रेस को देखने के लिए और जो था वो हॉर्स के पास, के स्टेबल के पास रहा क्योंकि हॉर्स की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी. I was glad to get home. My legs shook under me and I could only stand up. ठीक है, लेकिन हॉर्स थोड़ा प्राउड फील कर रहा था. ही वॉज ग्लैड दैट कि उसने अपनी ड्यूटी बहुत ही अच्छे से निभाई थी. ओके, वो बहुत ही अच्छे से बहुत ही कम टाइम में डॉक्टर के घर पहुंच करके डॉक्टर को घर तक स्ट्रेस की देखने के लिए ले आया था. पैंट दैट मीन्स टू ब्रीथ. अब क्योंकि वो बहुत थक गया था, क्योंकि वो बहुत भाग कर आया था, बिकॉज ऑफ दैट वो बहुत जोर जोर से सांस ले रहा था, ब्रीथ कर रहा था. ठीक है, क्योंकि वो बहुत थका हुआ था. ओके, Now I had not a dry hair on my body. The water run down my legs. क्योंकि वो बहुत ही थका हुआ था और क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी तो पूरे उसके बॉडी पे स्वेटिंग हो रही थी. उसके जितने भी जो हॉर्स के हेयर होते हैं पूरे वो देयर इज नॉट अ सिंगल हेयर ऑन हिज बॉडी विच इज बैड. ओके, जो कि ड्राई हो रखा था. ठीक है, पूरी बॉडी उसकी पसीने से गीली हो चुकी थी और वो बहुत गर्म हो चुका था. ओके, क्योंकि उसे फीवर आ चुका था. आई हैड नॉट अ ड्राई हेयर ऑन माई बॉडी. द वाटर रन डाउन माई लेग्स. और जो पानी था, जो पसीना था, वो उसके पैरों से एकदम से बह रहा था. सोचो कितना हार्ड वर्क किया था ब्लैक ब्यूटी ने. इतने इमोशंस, इतना सेंस ऑफ ड्यूटी शायद आज के टाइम में ह्यूमंस में भी नहीं होता है जितने एंशियंट टाइम में उनके एनिमल्स में हुआ करता था. दे आर वेरी लॉयल टूवर्ड्स देयर मास्टर.
दे आर वेरी ऑनेस्ट टूवर्ड्स देयर वर्क, दे आर वेरी हार्ड वर्क, कि जो भी काम उन्हें दिया जाता था वो बहुत ही सेंसिबिलिटी के साथ किया करते थे, चाहे उसमें उनको खुद को ही कितना भी हार्म क्यों ना हो जाए। तो दे आर नॉट सेल्फ सेंटर, दे आर नॉट सेल्फिश लाइक अस, कि आज के टाइम में वी ह्यूमन बींग्स आर वेरी सेल्फिश, वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट आवर सेल्फ। ओके, पहले हम अब खुद के बेनिफिट के बारे में सोचते हैं, पहले हम खुद के फायदे के बारे में सोचते हैं, तब हम किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं, राइट। बट इफ यू गो थ्रू दैट एंशिएंट टाइम, जब आप एंशिएंट टाइम में जाते हो तो you can learn so many things from the humans as well as from the animals, okay, कि how much loyal, honest or hard working they are, okay. So they have their own different lifestyle, they have their own different values and ethics that they are follow, okay, जो कि आज के टाइम में हम बिल्कुल भी फॉलो अप नहीं करते हैं, राइट। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतना चैप्टर हर किसी को क्लियर हुआ? इज देयर एनी डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो यू कैन टेक्स्ट अ मैसेज, ओके, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम, ओके। नाइट कैप, वेयर इज इट? नाइट कैप चैतन्य, नाइट कैप बेसिकली अ सॉफ्ट कैप, जो कि एक सॉफ्ट कैप होती है, ठीक है, जो पहनाई जाती है। I had not a dry hair on my body. The water ran down my legs and I steamed all over. Joe used to say like a pot on the fire. Poor Joe, he was young and smaller. जो था वो थोड़ा young था, छोटा था, ओके, तो उसको इतना सेंस नहीं था, उसको इतना नहीं पता था कि कैसे वो इन सारी सिचुएशंस को हैंडल करे, कैसे वो हॉर्स को हैंडल करे, उसकी केयर करे। जितना वो जानता था, ही वॉज डूइंग हिज बेस्ट, वो अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। And as yet he knew very little, and his father who would have been helped him had been sent to the नेक्स्ट विलेज, और जो उसके फादर थे जो उसकी हेल्प कर सकते थे, जिन्हें इतनी नॉलेज थी, वो यहाँ नहीं थे, उन्हें एक विलेज में भेजा गया था। बट आई एम श्योर ही डिड द वेरी बेस्ट, लेकिन उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हॉर्स का ध्यान रखने में। ही न्यू ही रब्ड माई लेग्स, ने उसकी लेग को रब्ड किया, चेस्ट को रब्ड किया, बट ही डिड नॉट पुट माई वार्म क्लोथ ऑन मी, लेकिन उसके जो गर्म क्लोथ थे उसने उसको उसके ऊपर नहीं रखा, बिकॉज ही डजंट हैव एनी आइडिया कि उसको ऐसा करना चाहिए। ही थॉट, उसने क्यों नहीं रखा, क्योंकि उसको लगा ही वॉज सो दैट क्लोथ इज सो हॉट एंड आई शुड नॉट लाइक इट, कि जो क्लोथ है, वो जो कपड़ा है वो बहुत गर्म है और शायद हॉर्स को वो चीज़ पसंद ना आए। देन ही गेव मी अ पेल फुल ऑफ वाटर टू ड्रिंक, उसने पानी दिया हॉर्स को पीने के लिए, और वो पानी बहुत ठंडा था, बट इट वॉज गुड, और उसने वो सारा पानी पी लिया। Then he gave me some hay and some corn. उसके बाद उसने उसे खाने के लिए कुछ hay और corns दिए, and thinking he had done all right, और बच्चे को ये लग रहा था कि whatever he has done everything right, ठीक है, जितना उसे पता था उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हॉर्स की केयर करने में, ओके। ही वेंट अवे सून, वो वहां से चला गया। देन ही बिगेन टू शेक एंड ट्रम्बल एंड टर्न डेडली कोल्ड माई लेग्स, फिर उसने पूरी कोशिश की वापस आकर के उसकी लेग्स को उसने स्क्रबिंग की, ठीक है। दैट एंड माई लायंस एक्ट, और loins act, that is the part of the body on both sides of the spines between the ribs and the hip bones, okay. he was not able to understand कि उसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ताकि वो उसको बचा सके और उसके फीवर को कम कर सके, ठीक है। जितना वो जानता था, ही वॉज डूइंग हिज बेस्ट फ्रॉम हिज साइड, वो अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा था। एंड आई फेल्ट स्टोर ऑल ओवर, ओके, स्टोर सफरिंग पेन फ्रॉम अ पार्ट। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ब्यूटी, जो ब्लैक ब्यूटी हॉर्स था, उसकी पूरी बॉडी में पेन होने लगा, ठीक है। जॉन सीम टू बी वेरी मच पुट आउट, आई हर्ड हिम से टू हिमसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन। अब जो हॉर्स था वो बेचारा क्या करता, बोल तो सकता ही था, वो खुद से ही बोलता, stupid boy, no clothes put on, and I dare say that the water was cold too. Boys are no good, but Joe, लेकिन boys are no good, he was saying to himself, but वो बोलते, लेकिन जो जो था वो एक अच्छा बच्चा था, उसने he has done everything best from his side, because maybe he doesn't have any idea, उसको इतना आइडिया नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं थी, जिस वजह से उसने वो वार्म क्लोथ उसके ऊपर नहीं डाला। आई वॉज नाउ वेरी इल, अब जो हॉर्स था उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी।
A strong inflammation had attacked my lungs. Strong inflammation, that means a physical condition in which a part of the body becomes swallow, hot and often painful. Okay, इन्फ्लेमेशन मतलब कि बॉडी जो है वो सूजने लगती है, पेन होने लगता है बॉडी में और बहुत गर्म हो जाती है, और जो इसकी लंग्स इसकी वजह से उसको लंग्स पे अटैक आया हॉर्स को, एंड आई कुड नॉट ड्रॉ माई ब्रीथ, वो सांस नहीं ले पा रहा था विदाउट पेन, और जब वो सांस ले रहा था तो उसको बहुत पेन हो रहा था. देन जॉन नर्स मी नाइट, जॉन ने पूरी रात ब्लैक ब्यूटी की रक्षा की, ब्लैक ब्यूटी की देखभाल की. एंड ही वुड गेट अप 2 or 3 times, 3-4 बार वो उठ कर भी आया पूरी रात में ब्लैक ब्यूटी को देखने के लिए. माई मास्टर टू वेट माई मास्टर टू सो माई मास्टर टू ऑफन केम टू सी मी, जो उसका मास्टर था ब्लैक ब्यूटी का वो भी उसके पास आया. एंड ही सेड टू ब्लैक ब्यूटी, माई पुअर ब्यूटी, ही सेड वन डे, माई गुड हॉर्स. फिर उसको ही वॉज वेरी इमोशनल टूवर्ड्स द ब्लैक ब्यूटी. जैसे ही उसने ब्लैक ब्यूटी की ऐसी हालत देखी, ही बिकम वेरी इमोशनल, वो बहुत इमोशनल हो जाता है और अपने इमोशंस डिलीवर करते हुए ब्लैक ब्यूटी को बोलता है, माई पुअर ब्यूटी एंड माई गुड हॉर्स, यू सेव्ड योर मिस्ट्रेस लाइफ. तुमने अपनी मिस्ट्रेस की लाइफ को सेव किया. क्यों? क्योंकि ही नोस, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था तुम्हारी मिस्ट्रेस की लाइफ सेव नहीं हो सकती थी अगर बिल्कुल भी देरी हो जाती. यू सेव्ड हर लाइफ. आई वॉज वेरी ग्लैड टू हर्ट दैट, फॉर इट सीम्स द डॉक्टर हैड सेड इफ ही हैड बीन अ लिटिल लॉन्गर इट वुड हैव बीन टू लेट. अगर थोड़ा भी लेट हो जाता तो शायद मिस्ट्रेस की लाइफ नहीं बचती. जॉन टोल्ड माई मास्टर ही नेवर सॉ अ हॉर्स. जॉन ने बोला कि उसने कभी भी ऐसा हॉर्स नहीं देखा है जो इतना फास्ट दौड़ता हो इन हिज लाइफ. इट सीम्ड एज इफ द हॉर्स न्यू व्हाट वाज द मैटर. और वो इस तरीके से फास्ट इसलिए दौड़ रहा था क्योंकि ही नोज इट वेरी वेल कि प्रॉब्लम क्या है, सिचुएशन क्या है, और वो जानता था कि उसकी मिस्ट्रेस की लाइफ खतरे में है एंड ही वांट्स टू सेव हिज मिस्ट्रेस लाइफ. इसलिए वो इतनी जोर से दौड़ा एंड बिकॉज ऑफ दैट उसकी लाइफ खतरे में हो गई. ऑफ कोर्स आई डिड दो, जॉन थॉट नॉट, एटलीस्ट आई न्यू एज मच एज दिस दैट जॉन एंड आई मस्ट गो एट द टॉप ऑफ आवर स्पीड एंड दैट इट वाज फॉर द सेक ऑफ द मिस्ट्रेस. ठीक है, उन्होंने जो किया किस लिए किया? अपनी मिस्ट्रेस की लाइफ को सेव करने के लिए किया. ओके, so this is all about the story Black Beauty कि how honest, how much loyal, honest और ट्रस्टवर्दी ही वॉज, कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई थी ही फुलफिल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. दे हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन दैम. ठीक है, कि एनिमल्स में भी इतने इमोशंस होते थे एंशियंट टाइम्स में कि दे डू देयर ड्यूटी वेरी ऑनेस्टली. ठीक है, कि कितनी ऑनेस्टली वो अपने काम को करते थे चाहे उस काम को करने में उनकी लाइफ हार्म हो जाए. ठीक है, they never think about that. They are not selfish like us as we humans are today. Okay, वो उस तरीके से selfish नहीं होते थे. They are not self-centered like us as we humans are today. जैसे आज के टाइम में हम human beings होते हैं, जब क्योंकि हम क्या करते हैं आज के टाइम में, first we all are thinking about ourselves. सबसे पहले हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने भले के बारे में सोचते हैं, अपने अच्छे के बारे में सोचते हैं. Then we think about the others. Okay, बट इन एंशियंट टाइम्स जो एनिमल्स होते थे वो भी सबसे पहले अपने बारे में ना सोच करके अपने मास्टर्स के बारे में सोचते थे. दिस इज हाउ दे शो द लव इमोशंस टूवर्ड्स देयर masters. So if we want to learn all these values and ethics, we can go through that ancient stories and definitely we can inspire us, we can motivate ourselves, right? So this is all about this story. I think you all love this story. Okay, tomorrow we will discuss the question answer of this chapter. कल हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के. देन वी विल डू मैंटी ऑल्सो. वी हैव more than 4 or 5 students and definitely we will do Manti. If we don't have, then we skip the Manti. Okay, so this story is written by Anna Sewell. Okay, he was born in 1820 and died in 1878. He was a British novelist. A British novelist थे. Sorry, not he, she. Okay, so she was a British novelist. She is best known for her novel. वो अपनी नॉवल के लिए बहुत फेमस थी. उनकी जो फेमस नॉवल थी दैट इज ब्लैक ब्यूटी, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक विद चिल्ड्रन, जो कि बच्चों की सबसे पॉपुलर बुक थी.
Anna originally wrote the book to help people understand horse better so that they could take a better care of them. Okay, तो जो ब्लैक ब्यूटी जो नॉवल है इनकी, इन दिस नॉवल she has written basically about the horses, and this novel is narrated by the horse only. So if you want, you can go through that novel also. You can find so many stories about that horse. Okay, तो यू कैन गो थ्रू दैट नॉवल. अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हुई है तो आप नॉवल को पढ़ सकते हैं. यू कैन एक्सप्लोर दिस नॉवल एंड डेफिनेटली यू ऑल विल लव दिस नॉवल, राइट? So let's end today's class here. ठीक है? If you are new on this channel, if you have not subscribed our channel, you can definitely subscribe our channel. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, राइट? You can share it. Wait for a second. And definitely you all will love this novel, right? You can share it with your friends also, ठीक है? If so that they can come and join the session. And if, when we have more students, then definitely we will do Menti also. You all will love to do Menti. Okay, we will do online Menti quiz competition. If you all are interested, you can definitely join the session. So tomorrow we will discuss the question answers and we will do Menti. Thank you everyone. Stay safe, stay blessed, have a nice day, stay healthy.